Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. This reading is about your destiny's plan for you, for your career, next in career, relationship, finances. What is the destiny's plan for you? इस बारे में reading है. Let's get started with the reading now. Hello and welcome to the setup. हमेशा की तरह we are going to have 3 piles. So pile number 1 is new moon beginnings. Pile number 2 is moon memories, the past. Pile number 3 is full moon forgiveness. तो जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, वो वाला कार्ड आपने पिक करना है. अभी आ रहा है 30 सेकेंड का स्क्रीनशॉट थोड़ा पास से, ताकि आप इन कार्ड्स को अच्छे से देख सको. और अगेन जो भी आप कार्ड अपने लिए पिक करोगे, दैट इज गोना बी योर रीडिंग, दैट इज गोना बी योर पाइल. सो हैव दैट ट्रस्ट, हैव दैट फेथ ऑन योर सेल्फ दैट यू आर गोना पिक द राइट पाइल फॉर योर सेल्फ. सो अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट. जो भी कार्ड सुंदर लग रहा है, जो भी कार्ड अट्रैक्टिव लग रहा है, जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, वो वाला कार्ड आपने पिक करना है. तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑल राइट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose the new beginnings, or I should say new moon beginnings card. Let's get started with your reading. तो हम जो हैं यहाँ पर reading आपके oracle से शुरू करेंगे. I want to use this oracle. So yeah. What is the destiny's plan for pile number 1? What is the destiny's plan for pile number 1? All right. You have the faith card. I mean, the destiny says, or the universe says, that you need to have trust, that you need to have faith in the divine. You need to have faith that whatever is happening, it's happening for the better good. ऐसा हो सकता है पाइल 1 कि आप अपनी लाइफ में बहुत सिमिलर पैटर्न्स देख रहे हो, सिमिलर नंबर्स देख रहे हो, लाइक नंबर लाइक 999, 888, और अगेन सिमिलर पैटर्न्स, एंड everything is synchronized here. Have faith in your destiny, have faith on the universe's plan. All right, whatever is happening for the better good. So don't be like कि मेरी तरफ तो शायद जो है यूनिवर्स का ध्यान ही नहीं है, ये डेस्टिनी तो पता नहीं कैसी है मेरी. like don't feel this way. Have trust, have faith in your destiny, and of course the universe, the higher consciousness. Then we have the pain card. Literally it can happen, pile number 1, that you're dealing with pain in your life. It can be physical pain, it can be emotional pain, it can be some mental health issue, it can be some physical health issue you're going through. But let me tell you, this is about to end, because ये एक circle को भी show कर रहे हैं faith. तो circle जो है, again I should not say circle, I should say cycle, क्योंकि circle तो शुरू होता है और ख़त्म हो जाता है, but cycle होता है जो it keep on moving, it keep on going on. So this cycle of pain is about to end. And then we have the abundance card, and we also have the energy card. So after this painful cycle ends, you will notice abundance is gonna come in your life. ये वाला जो कार्ड है abundance का, ये ग्रीन कलर में है, and we see the coins as well. So wealth जो है, money जो आपके पास आ रहा है, wealth सिर्फ money नहीं होता, wealth जो होता है वो health भी हो सकती है. वो मतलब in general you will feel wealthy in life. You can buy whatever you want to buy. Your health is very good. You have good relationships. आत्मा को तन मन धन और जन का चारों सुख चाहिए. मन भी जो है शांत हो, तन भी जो है स्वस्थ हो, और जो धन है वो भी भरपूर हो, और जन यानी रिलेशनशिप वो भी बहुत अच्छे हो. तो आप ऐसा अपनी लाइफ में जो हो फील करने वाले हो, दैट कैन बी सीन.
A new cycle is about to begin. The faith card shows, again I'm saying the same thing, have faith on the divine, all right? So ऐसा मत सोचो मेरी तरफ तो भगवान का ध्यान ही नहीं है, मेरा तो डेस्टिनी पता नहीं कैसा सा लिख दिया. नो, इट्स नॉट दैट वे, ऑल राइट. Then we have the energy card. Energy card here shows that you are connected to a lot of people. You have a big network circle. Yes, somehow you are connected to a lot of souls. और वो souls वो आपकी energy ले रही हैं. और अगेन ये पास्ट लाइफ चीज भी हो सकती है. इस लाइफ टाइम में आपने इतने सारे कनेक्शंस बनाए हुए हैं, बट आपकी एनर्जी दूसरी सोल्स या दूसरी चीज़ें खींचती रहती है. सिंपल चीज़ जैसे अगर आपके कमरे में बहुत सारा कूड़ा कचरा है, ऐसी चीज़ें जो यूज़ नहीं होती वो भी आपकी एनर्जी खींच रही है. ऐसे लोग जो आपको पता है कि दोज पीपल आर नॉट राइट फॉर मी, आई फील ड्रेन्ड व्हेन आई टॉक टू देम, और आई डोंट फील गुड व्हेन आई एम इन देयर कंपनी. यू नो इट, बट यू स्टिल आर कनेक्टेड टू देम. क्यों? शायद कोई फ़ायदा हो आपका, या फिर उनका आपसे कोई व्हाटएवर इट इज, कुछ ना कुछ तो है. आपकी एनर्जी खींच रही है कई चीजें या कई लोग. सो विद दिस कार्ड आई फील द स्पिरिट, द यूनिवर्स इज गाइडिंग यू दैट यू नीड टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी, यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ. जो साइंस है वो कहती है देयर इज सम पावर इन द बॉडी जिससे वो बॉडी चलती है. अगर वो पावर निकल जाए, जिसको वो एनर्जी कहते हैं, जिसको स्पिरिचुअलिटी में सोल कहते हैं, तो शरीर जो है वो डेड है, अर्थी हो जाता है. अर्थी यानी बिना रथी के. रथी जो है आत्मा है और ये रथ जो है ये शरीर है. सो somehow with the energy card you need to take care of your spiritual side of life. Pile 1, you need to take care of your food of soul. अच्छी बातें जो है वो food to soul है. स्पिरिचुअल बातें जो है फूड टू सोल है. नॉलेज जो है वो फूड टू सोल है. सो समहाउ विद द एनर्जी कार्ड यू नंबर 1 नीड टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी, एंड सेकेंड ऑफ ऑल यू नीड टू डू समथिंग स्पिरिचुअल इन लाइफ. बट डेस्टिनी का ये प्लान है, ये चीज़ हो रही है कि आप सच में अपने आप को डिसकनेक्ट करो जो लोग आपकी एनर्जी को खींचते हैं. ये ऐसा डेस्टिनी का प्लान यहाँ आपके लिए नज़र आ रहा है. एंड समहाउ वो फिर पेनफुल जो प्रोसेस या जो पेनफुल सिचुएशन से आप डील करो वो भी, उसका भी एंड हो जाता है. एंड योर फेथ ऑन डिवाइन, योर फेथ ऑन यूनिवर्स इंक्रीजेस एंड अबंडेंस कम्स. तो ऐसा कुछ यहाँ पर प्लान जो है डेस्टिनी का आपके लिए नज़र आ रहा है. लेट्स पुल सम स्पेसिफिक कार्ड्स अबाउट योर करियर, about your relationships, about your finances. So सबसे पहले करियर के बारे में. अगर आप एजुकेशन में हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, फाइल नंबर 1 के लिए फिर क्या मैसेज है करियर में? All right, so we have the Tower card. The Tower definitely shows something in career is about to end. Literally, you can change your job, leave your current job and move to some other company. जो business है उसके अंदर भी एक new beginning नज़र आ रही है और किसी चीज़ का end हो रहा है. किसी चीज़ का in fact ये end is, it can literally, it can be completion or something in business is ending and a new thing is starting in business. अगर आप एजुकेशन में हो तो किसी एजुकेशन को आप कंप्लीट करने वाले हो या उस एजुकेशन का somehow एंड हो रहा है और कोई नई चीज़ आप एजुकेशन में शुरू कर रहे हो, कोई नई चीज़ लर्न करना आप शुरू कर सकते हो. That is something which we are getting. And again, this is the destiny's plan. Let me pull one more card for career. We have the 4 of cups. I mean, you feel that you only have these 3 opportunities, और मतलब आपको लगता है कि 3 4 5 यही मेरे पास चीज़ें हैं या 2-3 चीज़ें हैं मेरे पास जिसको मैं चूज कर सकती हूँ. बट यू नो वॉट, द यूनिवर्स इज ब्रिंगिंग यू, द डेस्टिनी इज ब्रिंगिंग यू सम अदर अपॉर्चुनिटी, और आपका ध्यान इन्हीं अपॉर्चुनिटीज पर है. ये जो आ रही अपॉर्चुनिटी इस पर है ही नहीं, इस पर है ही नहीं. एंड बैकग्राउंड में भी कुछ चीजें हो रही है. मतलब इट कैन हैपन दैट योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, योर नेबर्स, उनकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ चल रहा है. वो भी कुछ ना कुछ एक रेस ऑफ लाइफ में लगे हैं, उनका अपना चल रहा है और आपका यहाँ पर अपना चल रहा है.
और आप अपने लाइफ पर बहुत फोकस करते हुए नजर आ रहे हो, अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए नजर आ रहे हो, बट यू आर नॉट ब्रॉड माइंडेड इनफ टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी एंड द स्पिरिट इज गाइडिंग यू दैट लिसन हेयर, अपने कान नाक अपने सेंसरीज जो है उसको ओपन करो, उसको यूज करो अच्छे से, ब्रॉड माइंडेड हो, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है career wise and you're unable to see it or you don't want to grab it maybe, but whatever it is, some opportunities in career is coming and the destiny's plan is कि इस opportunity के through आपके लिए बहुत abundance, आपके लिए success है, आपके लिए financial security, stability है. So yeah, that is what we are getting here. अबाउट योर फाइनेंसेस, फाइल नंबर 1, अगर आप खुद अर्न करते हो तो आपके फाइनेंसेस, अगर आपके परिवार में, अगर आप खुद अर्न नहीं करते तो आपके परिवार में जो अर्न करता है उनके लिए यहाँ पर कार्ड है hermit. So hermit here is showing number 9 here, the hermit is showing that you are gonna, like your finances are good, बुरा नहीं है finances अच्छे हैं, satisfactory हैं, और आप साथ में कुछ ऐसी चीज़ें खरीद सकते हो इस आने वाले फ्यूचर में जो सेल्फ केयर रिगार्डिंग है, वेदर इट्स स्किन केयर प्रोडक्ट्स और वेदर इट्स some massage machine, things which can make you feel relaxed. ऐसी चीज़ों पर आप अपना मनी इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो. आप अपने मनी से कहीं घूमते हुए नज़र आ रहे हो, कोई वेकेशन पर जा रहे हो या फिर एक दो दिन के लिए कहीं पर जा रहे हो टू रिलैक्स. दैट कैन बी सीन हेयर, बट विद द हर्मिट इट डज शो दैट द फाइनेंसेस आर सैटिस्फैक्ट्री. मैं ये नहीं कह रही बहुत ज़्यादा है और मैं ये भी नहीं कह रही बहुत कम है, सैटिस्फैक्ट्री है. सो या आई ऑल्सो फील जब आप रात, इफ़ यू आर इन करियर, इफ़ यू आर अर्निंग, तो जो रात को आप काम करते हो, रात को अगर आप काम करने बैठते हो तो, and if you have the opportunity to work at any time of the day, तो जब आप रात को काम करते हो somehow are able to gain more income. I don't know, like this message is for some of you. And about your relationships, file number 1 के relationships. All right, we have the 10 of Pentacles. 10 of Pentacles is again a very positive card. Like 10 of Pentacles shows abundance in every aspect of life, क्योंकि रिलेशनशिप के मामले में निकला है तो परिवार के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत इम्प्रूव्ड, बहुत अच्छा नज़र आ रहा है. आपका रिलेशनशिप अपने पेट्स के साथ भी बहुत अच्छा नज़र आ रहा है और सब आपसे खुश है, आप सभी से खुश हो, आपको किसी से शिकायत नहीं, दूसरों को आपसे शिकायत नहीं. फैमिली का जो माहौल है वो बड़ा पॉजिटिव, बहुत अच्छा नज़र आ रहा है. प्यार नज़र आ रहा है परिवार में, स्नेह प्यार नज़र आ रहा है, एक्सेप्टेंस नज़र आ रही है कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट करती हूँ और तुम मुझे एक्सेप्ट करते हो एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट. तो उस तरह से एक्सेप्टेंस नज़र आ रही है. इफ़ यू आर इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, वो रोमांटिक रिलेशनशिप में भी हेल्दी बाउंड्रीज, लव, रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर नज़र आ रहा है, कमिटमेंट नज़र आ रही है. इफ़ यू आर नॉट इन अ रिलेशनशिप एंड यू आर रेडी टू मिंगल, तो यू मे मीट समवन जो एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, जिसको पारिवारिक माहौल बहुत अच्छा लगता हो, जो बहुत अच्छे परिवार से आ रहे, फाइनेंशियली स्टेबल सिक्योर परिवार से आ रहे हैं और इमोशनली ऑल्सो, मतलब उनकी जो अपब्रिंगिंग है, जो उनके पेरेंट्स ने उनकी अपब्रिंगिंग करी है वो बहुत अच्छी करी है, बड़े स्नेह प्यार से करी है. और अगर आप is single and you're not ready to mingle, then with the 10 of Pentacles it shows कि जो आपके current relationships हैं, दूसरे romantic relationship के अलावा जो दूसरे relationship है, उनसे आप बड़ा भरपूरता महसूस कर रहे हो, आपको उनसे शिकायत नहीं है. तो पर्सनल लाइफ बहुत 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 अच्छी नज़र आ रही है, बहुत हेल्दी नज़र आ रही है और डिससेटिस्फैक्ट्री बिल्कुल भी नहीं है. सो दैट इज़ एक्चुअली रियली ब्यूटिफुल, दैट इज़ एक्चुअली ब्यूटिफुल. क्योंकि आजकल यही देखने में आता है कि उनको मेरा नेचर पसंद नहीं, मेरे को उनका नेचर पसंद नहीं, एक दूसरे को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, एक दूसरे की बुराइयां देखते हैं और बुराइयां करते हैं.
तो जो जब हम किसी की बुराइयां देखते हैं तो वो अच्छा कैसे लग सकता है, वो इंसान अच्छा तो तभी लगेगा ना जब हम उसकी अच्छाई देखेंगे। तो समहाउ आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट यहाँ नज़र आ रहा है, और जिसकी वजह से आपको हर कोई इनफैक्ट बहुत 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 अच्छा लग रहा है। आप सभी के गुणों को देख रहे हो। होली हंस जैसे होते हैं ना, वो मोती चुगता है, वो कंकर पत्थर नहीं चुगता, उसी तरह आप भी जो हो दूसरों के गुण देखते हो। दैट इज ब्यूटिफुल। एंड आई ऑल्सो वांट टू पुल अ कार्ड फॉर हेल्थ, physical and mental health. So we have the emperor. Emperor here shows that you're working on your health, or you will start working on your health. Maybe you will have a routine for yourself. वो फिटनेस वाला रूटीन आई एम टॉकिंग अबाउट कि इस समय से लेकर इस समय तक आई विल गो टू जिम, और आई विल डू योगा, और आई विल डू सम एक्सरसाइज, दिस इज माई टाइम। ये शाम को मेरा समय वॉक करने का जो मेरी मेंटल हेल्थ को बड़ा इंप्रूव करता है। तो यू आर हैविंग, और योर in future you have a routine अपने physical health को अच्छा रखने के लिए और अपनी mental health को भी अच्छा रखने के लिए। You have a routine which you're following and you're happy about it. Emperor here shows कि प्लान अकॉर्डिंग चल रही है चीज़ें। हेल्थ जो है बहुत अच्छी चल रही है। जैसा आप सोच रहे हो कि मेरी हेल्थ जो है अच्छी होती जा रही है, वैसी सच में अच्छी होती जा रही है। एम्परर शो करता है कि आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना। क्लियर माइंड यहाँ नजर आ रहा है, तो मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं नजर आ रहे। यू आर इन कंट्रोल, यू आर इन चार्ज ऑफ योर इमोशंस, ऑफ योर थॉट्स एज वेल। तो मेंटली और फिजिकली ये एम्परर कार्ड बहुत अच्छा कार्ड आ रहा है, यानी अच्छी सिचुएशन रहने वाली है मेंटली भी और फिजिकली भी। सो दिस इज द यूनिवर्स's प्लान फॉर यू नेक्स्ट। एंड लेट मी पुल लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन मोर oracle card for you all. So we shall pull some cards from this astrology deck for pile number 1. What is the destiny's plan for pile number 1 next? Okay, we have Gemini. It says cross pollinate. So Gemini is also a sign which represents social media. It represents connecting to other people. जैसे आपकी एनर्जी दूसरे लोग ले रहे हैं, I feel with the Gemini you're becoming a smart Gemini energy. आपका सन मून राइजिंग आत्माकार का ascendant लॉर्ड या फिर कोई और प्लैनेट जरूर प्लेस्ड हो सकता है Gemini साइन में, या फिर अभी जो है अभी के समय में आपके लिए Gemini साइन बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप किसी Gemini पर्सन से मिल भी सकते हो। या somehow Gemini एनर्जी जो है आपके चार्ट में बड़ा डोमिनेटिंग है, बड़ा इंपॉर्टेंट बन रहा है सो अभी के समय के लिए। सो इट डज शो दैट यू आर बीइंग अ स्मार्ट जेमिनी। इट डज शो कि आप हेल्दी बाउंड्रीज दूसरों के साथ जो हो बना पा रहे हो, और आपको पता है किससे क्या बात करनी है, किस समय पर वो बात करनी है, किस लहजे से किस तरीके से वो बात करनी है। यू आर बीइंग इंटेलिजेंट इन दैट वे, यू आर वेरी इंटेलिजेंट विद योर कम्युनिकेशन एंड विद जेमिनी you are also like the destiny's plan is to change your hairstyle or your hair color or your face appearance somehow. I mean, maybe you're dealing with you were dealing with some, or you are dealing with some skin issue, and that skin issue is actually improving, hence it is improving your physical appearance. जो हेयर स्टाइल होता है वो हमारी फेस शेप को थोड़ा ऑल्टर कर सकता है। तो you're getting a new haircut done, you're getting a new hairstyle done, or maybe new hair treatment done. If your hair were really curly, frizzy, then maybe you are getting some hair treatment through which you have straight hair, shiny hair. So physical appearance में बदलाव ये बड़ा स्ट्रांगली जेमिनी शो कर रहा है। इनफैक्ट में भी आपको कोई सेलिब्रिटी का फिजिकल अपीयरेंस बहुत पसंद है, हेयर स्टाइल बहुत पसंद है, लुक बहुत पसंद है, सो यू आर कॉपिंग दैट। एंड विद द जेमिनी आई ऑल्सो सी दैट यू आर रियली लाइक यू आर इन्वॉल्व्ड इन सोशल मीडिया, क्वाइट इन्वॉल्व्ड इन सोशल मीडिया। बट आप सोशल मीडिया को ऐसा नहीं है कि दिन रात यूज कर रहे हो जिससे आपकी मेंटल हेल्थ डोरिएट हो रही है। इट्स नॉट लाइक दैट, बट इन अ स्मार्टर वे यू आर यूजिंग सोशल मीडिया जिससे आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा भी होता है। सो ऐसा कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा है। टेक्नोलॉजी जो है वो बुरी नहीं है, बस उसका गुड यूज़ करना आना चाहिए। एंड विद द जेमिनी एनर्जी, दिस इज स्मार्ट जेमिनी एनर्जी, तो यू आर यूजिंग सोशल मीडिया, इंटरनेट in a smart way, not in a destructive way.
So yeah, this is something which we are getting for you, pile number 1. Astrologically dekhe to of course Gemini sign, and also Sagittarius sign, and Capricorn sign, Aquarius sign, ये prominent है. तो Gemini में, and even Virgo also. So Gemini में we have the nakshatra of Mrigasira, Ardra, Punarvasu. वर्गो में उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा. सेजिटेरियस में मूला, पूर्व आषाढ़ा, उत्तर आषाढ़ा. और कैप्रिकॉर्न साइन भी और एक्वेरियस भी. यस, तो कैप्रिकॉर्न में वी हैव द नक्षत्र ऑफ उत्तर आषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा. फिर धनिष्ठा स्पिल करता है एक्वेरियस में शतभिषाख एंड पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र. ऑलराइट, सो ये जो है इन नक्षत्र में सन, मून, राइजिंग, आत्माकार का असेंडेंट लॉर्ड या फिर कोई और प्लैनेट जरूर प्लेस्ड होगा D1 मेन बर्थ हॉरोस्कोप में, या D9 नवांश चार्ट में, या D12 चार्ट में. So yeah, this is what we are getting. So do let me know in the comment section below, pile number 1, how this reading resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Let me know, and also write angel blessing in the comment section below, and do like this video reading. And for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself for reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you are interested in these bracelets are cleansed, energized by me. You can get these bracelets over the website itself. Right now I'm wearing the C set. You can get the citrine and the amethyst set for yourself or for your loved ones. So you can check them out on the on the website itself. Again, the link to the website is in the description box below, and I shall see you in the next reading, pile number 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose the moon memories, the past. So let's get started with your reading, pile number 2. So हम oracle से शुरू करेंगे reading को. Pile number 2. What is the destiny's plan for pile number 2? Okay, I feel this one. Okay, we have the communication card. All right, I feel that like the destiny is going to make you learn some new language in the very near future, and it can even be a new accent. All right, and with communication I feel that you're being smart with your communication कि कब किससे क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, किस तरह से बात करनी है, किससे बात करने से फ़ायदा है और किससे बात करने से नुकसान है. You're being really clever with your communication. Your logic is also increasing. Your observational power is also there, and it is again increasing. Communication जो है वो Mercury rule करता है. Mercury हमारी speech है. टोन ऑफ स्पीच भी हम कह सकते हैं. सो टोन ऑफ स्पीच और योर एक्सेंट, it is kind of changing, it is evolving, you're learning some new language. Mercury is logic, Mercury is also mathematics. So if you were a person who used to deal with problems in calculations with numbers, तो वो चीज़ फाइनली इम्प्रूव हो रही है. जो स्कूल नहीं सिखा पाया पायल नंबर 2, वो लाइफ सिखा रही है टू कैलकुलेट, टू मतलब आप एटलीस्ट प्लस माइनस तो कर सको. उसको और बेटर बना रही है, उस तरह के मैथमेटिक्स को और बेटर बना रही है. Then we have the forgiveness card. The forgiveness card shows कि you have let go, or you have, your energy is becoming more light. Heavy नहीं है energy, बहुत light energy होती जा रही है. और light इस वजह से because you are not carrying the baggage of past. इसने मुझे ये कहा, उसने मुझे ये कहा, फिर मुझे ऐसा हुआ, फिर मेरा मन करा कि मैं इसको ये बात कहूँ, पर मैंने वो बात कही नहीं. इसने 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले मुझसे ऐसी बात करी थी. सो वो जो ग्रज आप होल्ड करा हुआ था आपने, यू हैव लेट गो ऑफ दैट ग्रज, यू हैव लेट गो ऑफ पीपल ऑफ योर पास्ट. वो पास्ट मेमोरीज बन चुकी है. आपने उन मेमोरीज को भी जो है भुलाने की जो है कोशिश करी थी, बट अब जो है आप उनको फॉरगिव करके फॉरगेट कर रहे हो. इस वजह से अब वो भूल जाएंगे, आपको बार बार याद नहीं आएंगे. Then we have the fear card here. The fear I feel is not really कि कोई बहुत
नेगेटिव चीज होने वाली है. इट जस्ट दैट यू हैव दिस फियर ऑफ अननोन. यू जस्ट फियर के समथिंग बैड कैन हैपन. बट यू नो वट, लाइक दिस फियर इज ऑल्सो एंडिंग हेयर. द फियर कार्ड इन दिस डेक शोज कि जो भी आपका फियर था उसका यहाँ पर एंड होता हुआ नजर आ रहा है. उस फियर के मामले में कोई क्लैरिटी आ रही है, जिस क्लैरिटी के थ्रू, जब हमें क्लैरिटी नहीं होती ना कि आगे क्या है, क्या होने वाला है, तो हमें फियर होता है कि व्हाट इज अबाउट टू हैपन, ओ माय गॉश, आई होप एवरीथिंग हैपन्स गुड. बट आई फील विद दिस फियर कार्ड हियर, द डेस्टिनी हैज दिस प्लान कि जिस चीज़ के बारे में आप फियरफुल थे उस चीज़ के बारे में अब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी. उस चीज़ के बारे में आप जैसे सोचते थे ना कि बहुत मुश्किल होने वाला है या पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, एक तरह से पहाड़ जैसी कोई आपको लगता है मुश्किल है, पर उसके अंदर चूहे जैसा दम भी नहीं. और एक्चुअली चूहा दमदार होता है. रैट इज़ द सेकेंड मोस्ट डिस्ट्रक्टिव एनिमल. पहला तो ह्यूमन ही है. बट जैसे वी कैन से कि जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपने समझी थी, सोची थी, वैसा कुछ भी नहीं है. सो या बट आई फील कि उस पास्ट समय में शायद वो फियर इम्पॉर्टेंट भी था, सो दैट यू पुट योर एफर्ट्स. दैट वाज आल्सो डेस्टिनी प्लान्स की भाई फियर होना ज़रूरी है. जैसे हमारे पास्ट में तुम अगर जो हो पाप करोगे, गलत करोगे, तो तुम कुत्ता बिल्ली बन जाओगे अगले जन्म में. बट दैट कैन नॉट हैपन. नॉलेज ये कहती है अगर पाप करोगे, अब देखो इंसानी आत्मा है, इंसानी शरीर ही ले सकती है, क्योंकि इंसान का, इंसानी आत्मा का कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट दूसरे इंसानी आत्माओं के साथ है, और कुत्ता बिल्ली का कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट दूसरे कुत्ते बिल्लियों से है. तो सबसे बड़ा कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है किसी को पैदा करना, किसी को जन्म देना. वो कितना पेनफुल प्रोसेस है. अब वो अगर इंसानी जन्म लिए तो इंसान के साथ ही कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है. पाप करोगे तो इंसानी जन्म ही मिलेगा, और ऐसे घर में पैदा हो जहाँ पर आपकी नीड्स भी ना फुलफिल हो, या ऐसा शरीर मिले जो अपाहिज हो, जो लोग देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, या उनका कोई ऑर्गन पैदा होने से ही डैमेज्ड है. वी डेफिनेटली कैन सी दैट दे हैव डन सम रॉन्ग कर्मास इन देयर लाइफ, इन द पास्ट लाइफ. हम जो, चाहे वो एक मर्डरर है, चाहे वो एक रेपिस्ट है, सिर्फ उसकी सज़ा, इनफैक्ट उसकी सज़ा जो है फांसी नहीं है, पर अगले जन्मों तक वो आत्मा को भुगतना पड़ता है उस पाप का रिजल्ट. तो ऐसा नहीं है कि ऐसे ही छूट जाएंगे. कर्म जो फिलॉसफी है, कर्म फिलॉसफी, वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत तीखी है. तो अपने कर्म ज़रा ध्यान से करने चाहिए, इस वजह से कहा जाता है. और आज की डेट में तो कई लोग ये भी कहते हैं कि हम तो अगर पाप कर्म करने से जो है कुत्ता बिल्ली अगले जन्म में बन जाते हैं तो ओके, मैं पाप कर्म ही करूँगा, क्योंकि इंसानी जन्म लेने से तो बहुत ही प्रॉब्लम है. पढ़ना पड़ता है, शुरू से 3-4 साल की उम्र से पढ़ना पड़ता है, फिर उसके बाद नौकरी को ढूंढना पड़ता है, फिर उसके बाद वो ना हो तो फिर परिवार है उसको देखना पड़ता है. तो कितना प्रॉब्लम है, कितना स्ट्रेस है. मैं तो कुत्ता बिल्ली ही बन जाऊंगा. तो आज की सोच ये है, पर सच्चाई ऐसी नहीं है. तो विद द जो पहले फियर फैलाया गया कि पाप कर्म करोगे तो कुत्ता बिल्ली का जन्म ले लोगे, अब रियलाइज होता है ऐसा नहीं है. तो इवन लाइक दिस कार्ड इज शोइंग, ये बात हम इसलिए करें बिकॉज पास्ट में किसी चीज के बारे में आप फियरफुल थे, जो कि फियरफुल होना भी चाहिए था, अदरवाइज शायद आपको ज्यादा ही कोई बैड सिचुएशन में आप फंस सकते थे, और भी बुरी सिचुएशन में आप फंस सकते थे. कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मे बी योर ट्यूशन टीचर टोल्ड यू कि अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो मैं तुम्हें चूहे वाले कमरे में बंद कर दूंगी. तो बच्चे ने पढ़ना शुरू कर दिया और बच्चा अच्छे नंबरों से पास भी हो पाया. बाद में रियलाइज हुआ कि चूहे वाला कमरा कोई है ही नहीं. अब कौन सा कोई ट्यूशन टीचर चूहे वाला कमरा स्पेशली बच्चों के लिए बना के रखे. बट दैट फियर इन दैट मोमेंट वाज इम्पॉर्टेंट सो दैट यू डू द राइट work, right karma. So but now the destiny's plan is that you will realize कि जिस चीज़ से आप डरते थे वो चीज़ नहीं है, वो fearful वो चीज़ है ही नहीं, fear वाली कोई बात ही नहीं. And I feel with the communication card here, fear card in conjunction with communication card, शायद किसी टीचर, शायद किसी प्रोफेसर या आपके बॉस के बारे में अफवाहें फैलाई जा रही है कि आपका बॉस या आपका टीचर प्रोफेसर बहुत ही खड़ूस है, बहुत मुफट है, बड़ा ध्यान से बात करनी पड़ती है, और जब आप उनसे
मिलने जाओ पर्सनली, देन यू रियलाइज कि ये तो बहुत ही सीधा साधा इंसान है, क्यों इसके बारे में लोग ऐसे बोलते हैं. सो दैट कैन इवन हैपन. फाइल नंबर 2, like the destiny's plan is like that. Then we have the burden card here, because burden is in conjunction with the forgiveness card. It does show past में ऐसे लोगों के साथ आप रहे हो जिन्होंने आपको दुख तकलीफ पहुंचाई है, जो आपको कहते थे कि आप उनके लाइफ के बर्डन हो, बट यू रियलाइज्ड आप उनके लाइफ के बर्डन नहीं हो, वो आपकी लाइफ में बर्डन थे, एंड समहाउ वो अब जा चुके हैं, आपकी लाइफ से जा रहे हैं, जा चुके हैं, और उनकी यादें भी उनके साथ ही जा रही है. दैट इज अ गुड थिंग. एंड ऑफ द डेक में वी हैव द काउ कार्ड. इट सेज नरिशमेंट, अबंडेंस, आस्किंग, रिसीविंग. सो we already have the abundance card, and I also feel that your sun moon rising atma karka ascendant lord or some other planet can be placed in the Cancer sign in the nakshatra of Pushya, because Pushya is about cows, others, it's about nourishment, it's about milk products, it's about इंटेलिजेंस, हायर फिलोसफी. अगर माघा नक्षत्र जो है किंग है, देन पुष्य इज द एम्परर, मीनिंग दैट यू कैन गेट सम सीट ऑफ पावर. डेस्टिनीज प्लान इज टू मेक यू अ टीचर, काउंसलर, एडवाइजर, कंसल्टेंट, अगेन अ प्रोफेसर, और समवन हु इज इन पावर, जो दूसरों को गाइड एडवाइस करता है. लाइक डेस्टिनी का प्लान ये है, ये आपको डेस्टिनी बनाना चाहती है, एंड यू आर गोना ब्रिंग इवन अबंडेंस टू अदर पीपल्स लाइफ. शायद आप दूसरों की लाइफ बनाओ, कोई ऐसी बात उनको कहो जिससे दूसरे की लाइफ बन जाए, वो उसको प्रैक्टिकल रियलिटी में उस एडवाइस को लगा पाए, जिससे उसकी ज़िंदगी बन जाए. सो आप ऐसा भी कोई काम अपनी लाइफ में करते हुए नज़र आ रहे हो. यहाँ पर हम स्पेसिफिक कार्ड्स पुल आउट करेंगे. पाइल नंबर 2 आपके करियर के बारे में, जॉब, बिजनेस, एजुकेशन, जिस भी स्टेज ऑफ लाइफ पर आप हो. सो वी हैव Two of Wands. Two of Wands here shows that जो चीज़ें आपने प्लान करी है, कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, हर किसी के होते हैं, आपके भी होंगे. पाइल 2, जो भी लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, उन गोल्स को आप अचीव करते हुए नज़र आ रहे हो. उन गोल्स को आप सच में प्रैक्टिकल रियलिटी में अपनी आंखों से देख रहे हो कि वो सच में प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं, एंड यू आर रियली हैप्पी अबाउट इट. सो अगर आप जॉब में हो तो जॉब में कोई चीज़ लॉन्ग टर्म गोल आप अचीव करो, बिजनेस में हो तो कोई लॉन्ग टर्म गोल आप अचीव करो, एजुकेशन में तो कोई एजुकेशन में चीज़ आप अचीव कर रहे हो, एंड दैट हैज़ बीन योर ड्रीम. ऑलराइट, वो ड्रीम कम ट्रू यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है. व्हेन इट कम्स टू योर फाइनेंसेस, अगर आप खुद अर्न करते हो तो आपके फाइनेंसेस, अगर आपके परिवार में, अगर आप खुद अर्न नहीं करते तो आपके परिवार में जो अर्न करता है उनके फाइनेंसेस. सो वी हैव द एस ऑफ स्वॉर्ड्स. एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ शो करता है दैट यू आर बीइंग स्टिंजी अबाउट मनी, और समवन हु इज अर्निंग इन योर फैमिली इज बीइंग रियली स्टिंजी अबाउट मनी. जल्दी से पैसे खर्च आप लोग नहीं कर रहे हो, बहुत सोच समझ के आप पैसे खर्च कर रहे हो. जहाँ पर पैसे खर्च करने चाहिए वहाँ शाख की तरह खर्चते हो, और जहाँ पैसे नहीं खर्च करने हैं वहाँ एक पैसा भी आप नहीं निकालते हो. तो इस तरह से आप अपने फाइनेंसेस को हैंडल कर रहे हो. फाइनेंसेस ऑफकोर्स क्योंकि बचत ज़्यादा है तो फाइनेंसेस बढ़ रहे हैं, ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन है. इनफैक्ट आप अच्छा अर्न भी कर रहे हो, आपकी अर्निंग भी यहाँ बहुत अच्छी नज़र आ रही है. जो भी आपके परिवार में अर्न करता है उनकी अर्निंग बहुत अच्छी नज़र आ रही है. समहाउ उन आपको या उनको कोई एक्स्ट्रा मनी, कोई बोनस, उस टाइप की चीज़ भी यहाँ पर मिल सकते हैं. एक्स्ट्रा मनी जो है आप अर्न कर सकते हो. अबाउट योर रिलेशनशिप्स, पाइल नंबर 2 के रिलेशनशिप्स. All right, so we have 8 of Swords. 8 of Swords shows that you should not hide things from other people. Pile number 2, that may not be the best. Destiny's plan is कि अगर आप कुछ चीज़ें अपने परिवार से, अपने loved one से छुपा रहे हो, वो चीज़ बाहर आ जाएगी. So you need to be careful. And 8 of Swords shows if you are in a romantic relationship, the Destiny's plan is कि they like I mean, if you are already in a relationship and if you feel my relationship is not gonna turn in marriage, not gonna turn in some commitment,
then you are wrong. The destiny plan is that this person is going to give you commitment. Maybe they are unable to give you time right now, which makes you think कि ये person आपकी परवाह नहीं करता है, but they are kind of busy in their life, but they also they also value you in their life. But you will require a lot of patience to be with this person, because जिस person के साथ हो वो person भी बहुत career oriented है, या कुछ वो अपनी life में stress से deal कर रहे हैं और शायद वो stressful चीज़ वो आपको नहीं बताना चाहते, because they don't want to spread stress, and that too to you. So you need to be really patient with your romantic partner. If you are not in a relationship and you want to get in a relationship with someone, then you may meet someone जो बहुत responsible हो, जो positive से पहले negative सोचता हो, वो ज़्यादा motivated ना हो कि pessimist energy वाला person हो, but at the same time again बहुत practical होगा ये person. ये हमेशा save for the rainy days type का person है, कंजूस भी है क्योंकि he or she wants to save for the rainy day. उनको लगता है जो बुरा होगा वो मेरे साथ ही बुरा होगा और किसी के साथ नहीं होगा. वो जो 1% चांसेस है वो उस साइड इफेक्ट के वो मुझे ही आएंगे. सो वो बहुत सोचने वाले इंसान है, बहुत सोचते हैं, ओवर थिंक करते हैं. इस तरह के पर्सन से आप मिल सकते हो. पॉजिटिव बात फिर इस पर्सन में ये होती है कि बहुत सोच समझ के कोई डिसीजन लेते हैं जो सही निकलता है. बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, हवा में फुकरी मारना, डींगे मारना उस तरह के पर्सन है. बहुत ग्राउंडेड, डाउन टू अर्थ पर्सन है. And most probably early in their life, early in their education, they were not the star kid, they were not scoring well. But later in life, when they understood the value of education, then they started to put efforts in their education, and then उनको जो अच्छे मार्क्स मिलने शुरू हुए, फिर अच्छा उनका बिजनेस या अच्छी उनकी जॉब होनी शुरू हुई, क्योंकि उनका एजुकेशन में उन्होंने बहुत, सीखने में उन्होंने बहुत एफर्ट डाला. और जल्दी से ये पर्सन सीख नहीं सकते. जैसे कई लोग होते हैं उनका दिमाग बड़ा तेज चलता है, वो एक ही दिन में या 2-3 दिन में 4 दिन में सारा सिलेबस कर लेंगे. दिमाग बहुत तेज चलता है, मेमोरी बहुत अच्छी है. वेरस ये जो पर्सन होंगे इनकी मेमोरी शायद इतनी अच्छी ना हो, इनको समय लगता है चीज़ों को याद करने में, अंडरस्टैंड करने में. पर जब वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं वो चीज़, तो उनके वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है. अगर आप एक रिलेशनशिप में नहीं हो, एंड यू आर नॉट हेयर टू बी इन अ रिलेशनशिप विद समवन, यू आर नॉट हेयर टू मिंगल विद पीपल, तो आपका यहाँ पर रिलेशनशिप जो है अपने साथ थोड़ा सा पेसिमिस्टिक नज़र आ रहा है. आप जो हो कहीं ना कहीं नेगेटिव ज़्यादा सोच सकते हो. दैट ओके, maybe I'm not going to score well in my next exam, maybe I will not be able to complete the work on time. कुछ ऐसे ख्याल आपके दिमाग में आ सकता है जो आपके पीस ऑफ माइंड को खराब करे, बुचर करे. बट द रियलिटीज़ कि आप अच्छे मार्क्स भी लाओगे और आप अपना डेडलाइन से पहले भी वो काम कंप्लीट कर लोगे. ये आपका मन जो है ये आपको गड़बड़ कर रहा है, ये आपको अगड़म बगड़म सोच रहा है, जिससे आप नेगेटिव पेसिमिस्टिक एनर्जी में आ जाते हो. आपका रिलेशनशिप अपने परिवार के साथ यहाँ पर जो है, इट्स लाइक कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मेरे परिवार वाले मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे पेरेंट्स या मेरे सिबलिंग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आप बहुत सोच रहे हो. एंड यू नो व्हाट, लाइक विद द 8 of Wands, you should not think about what they think about you. आपको क्या पड़ी कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है. उनकी खुद की लाइफ है, वो जो सोचे उनकी मर्जी. रियलिटी तो वो है ना जो आप एक्शन में लेकर आ रहे हो. कर्मा जो है वो इम्पोर्टेंट होता है. इंसान की पहचान उसके कर्मों से है, ना कि उसके विचारों से. विचार हम देख नहीं सकते ना, कर्म तो हम देख सकते हैं. तो जो भी सामने वाला सोच रहा है, लेट देम बी. वो उनका खुद का पर्सनल स्पेस है, उनको सोचने दो जो दूसरा सोच रहा है. उनकी खुद की लाइफ है, वो जो सोचे. अगर वो आपके बारे में सोच रहे तो वो अगेन वो अपने मन में सोच रहा है, आपको तो कुछ नहीं कह रहा ना. तो आप निश्चिंत रहो, ये आपके लिए मेजर गाइडेंस है. And about the health, I want to pull a card for health as well. Destiny का क्या प्लान है हेल्थ के बारे में, pile number 2 की. So we have judgment card here. The judgment card in terms of health is showing that you may really compare your health, your mental and physical health from other people, and the destiny's plan is that when you stop thinking about what others are thinking about me, या फिर when you stop
thinking about or comparing yourself with other people's health, other people's physical appearance, other people's mental health, जब आप वो कंपैरिजन छोड़ते हो तो डेस्टिनी का ये प्लान है कि तब आपको डेस्टिनी जो है गुड हेल्थ देगी, गुड मेंटल और फिजिकल हेल्थ देगी. सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर यू, पाइल नंबर 2. सो हम कुछ और कार्ड्स भी पुल आउट करते हैं, एक और ओरेकल कार्ड पुल आउट करते हैं from the astrology deck. पाइल नंबर 2 के लिए यहाँ पर क्या डेस्टिनी का प्लान है? All right, so we have 10th house, we have authority. So we were talking about communication and this fear card, right? तो और हम ये बात कर रहे थे कि मे बी जो प्रोफेसर है, बॉस है, उनका नेचर बुरा नहीं है, पर लोगों ने उनकी ऐसी इमेज बना रखी है, बट रियलिटी नहीं है, वो सच में एक अच्छे इंसान ही है, नॉर्मली है. सो विद 10th हाउस ऑल्सो शोज अथॉरिटी. 10th हाउस शोज योर कोवर्कर्स, योर बॉसेस, योर वर्क प्लेस, your career again, your karma, your actions. It's the marketplace, it's the house of fame. तो ये सब चीज़ों में पॉजिटिव चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है. ये डेस्टिनी शो करे कि अब इन चीज़ों में पॉजिटिव चेंज होगा. जो चीज़ें अगेन पहाड़ जैसी मुश्किल लगती थी ना करियर में, वो सच में पहाड़ जैसी मुश्किल नहीं है, वो बहुत ईजी है. 10th हाउस ये शो कर रहा है कि डेस्टिनी ने जो आपके अंदर फियर डाला हुआ था करियर के मामले में, व्हेन यू अगेन आँख से आँख मिलाकर देखते हो आप अपने फियर से, देन यू रियलाइज कि वो कुछ भी नहीं है, और आप कहीं ना कहीं अपने अथॉरिटीज से बातचीत कर रहे हो, और आपका रिलेशनशिप अपने अथॉरिटीज, अपने कोवर्कर्स के साथ अच्छा हो रहा है, बेटर हो रहा है, और आपको एक अथॉरिटेटिव पोजीशन मिल सकती है, आपको एक प्रमोशन मिल सकता है, आपको फेम मिल सकता है. तो ये डेस्टिनी का प्लान है आपके लिए. आप यहाँ पर एक्शन लेते हुए भी नजर आ रहे हो, कर्म करते हुए नजर आ रहे हो, जिसके थ्रू आपको प्रमोशन या वो फेम मिलेगा, वो रिकॉग्निशन मिल रहा है. ऑल राइट, सो या एंड इवन इफ यू फील पाइल नंबर 2 कि मेरे को श्रेय मिलना चाहिए था उस काम का, मेरे को फेम मिलना चाहिए था, मेरे को रिकॉग्निशन मिलना चाहिए था, पर मेरा रिकॉग्निशन कोई और ले गया. 10th हाउस ये शो कर रहा है विद द सन है दैट सच का सूरज कभी छिप नहीं सकता है. तो सच्चाई बाहर आ रही है जो आपकी फेवर में है. ये डेस्टिनी का प्लान है. ऑल राइट, सो या दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू, पाइल नंबर 2. एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो प्लैनेट्स विल बी प्लेस इन द 10th हाउस इन योर बर्थ चार्ट और इन योर D12 चार्ट या फिर इन द D9 नवांशा चार्ट. सम प्लैनेट्स विल बी डेफिनेटली प्लेस इन द 10th हाउस. और जो आपका सन मून राइजिंग है, आत्मा कारक है, असेंडेंट लॉर्ड है वो, या फिर कोई और प्लैनेट जो है वो साइन ऑफ टॉरस, एरीज, टॉरस, लियो और कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, वर्गो, इन साइंस में प्लेस्ड होगा या एक्वेरियस साइन में प्लेस्ड होगा. एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका. टॉरस में कृतिका स्पिल करता है, और रोहिणी, मृगशिरा फिर जेमिनी में स्पिल करता है. आर्द्रा, पुनर्वसु, फिर लियो में माघ, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी. कैप्रिकॉर्न में वी हैव द नक्षत्र ऑफ उत्तर आषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा स्पिल करता है एक्वेरियस में, सतभिषाक एंड पूर्वा भद्रपदा. तो इन नक्षत्रास में प्लैनेट्स जरूर प्लेस होंगे अगेन इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप D12 चार्ट या फिर इन द D9 नवांशा चार्ट. सो या दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू, पाइल नंबर 2. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Let me know, and also write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from the website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, you can check these bracelets out. Right now I'm wearing the C set and the citrine and amethyst, so you can buy these bracelets for yourself or for your loved ones. And again, these are available on the website, and the link to my website is in the description box below. You can check them out there, and I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the full moon card, the forgiveness card.
लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. तो हम यहाँ पर ओरेकल से ही शुरू करेंगे. सो या then we'll pull some specific cards from the main tarot. So pile number 3, what is the destiny's plan for pile number 3? What is the destiny's plan for pile number 3? All right, so we have change here. There you are traveling, pile number 3, that too in 9 weeks or 9 months from now, or 9 days from now as well. There is some travel happening. आप अपना सब जो हो सामान, अपना सब हिसाब किताब लेकर कहीं और जा रहे हो. चेंज कार्ड ये भी शो कर रहा है कि आपके घर में रेनोवेशन हो सकता है, और कहीं ना कहीं सच में एक चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, चेंज ऑफ सीनरी है. चेंज कार्ड ये भी शो कर रहा है सम ऑफ यू आर चेंजिंग योर कार, योर व्हीकल, एंड द चेंज कार्ड shows that somehow your mentality is also changing. Like maybe जो आपके थॉट प्रोसेस था किन्हीं चीज़ों को लेकर, वो बदल रहा है. नए लाइफ के एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, उस वजह से वो थॉट सिस्टम, थॉट प्रोसेस बदल रहा है. देन वी हैव द वेल्दी मैन हियर. द वेल्दी मैन ऑफ कोर्स शोज दैट आप पैसे वाली मशीन बन रहे हो, मीनिंग दैट आप इतना पैसा अर्न कर रहे हो, इतना मनी अर्न कर रहे हो कि आप पैसों वाली मशीन बन गए हो. यू हैव लॉट ऑफ वेल्थ विद यू, पाइल नंबर 3. वेल्थ वैसे सिर्फ मनी को शो नहीं करता है, बट वेल्थ जैसे हेल्थ को भी शो करता है. वेल्थ होता है, वेल्दी पर्सन वो है जिसको तन मन धन और जन का सुख है. तन भी उसका स्वस्थ है, मन भी उसका शांत रहता है, और धन भी उसके पास भरपूर है, और जन यानी उसके रिलेशनशिप से भी वो अच्छा महसूस करता है, रिलेशनशिप भी उसके अच्छे है, सेटिस्फैक्ट्री हैं. तो ऐसा चेंज आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है. एंड सम ऑफ यू कैन इवन मीट सम पॉलिटिकल पर्सन, someone who is in political, who do have political power, or some of you are politicians already maybe, या फिर आप ऑफिस पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो और उस ऑफिस पॉलिटिक्स को आप सुलझा पा रहे हो और लोगों को, अच्छे लोगों को आगे लेकर आ रहे हो. दैट कैन बी सीन हेयर. समथिंग मोर, यू आर अगेन वेरी हैप्पी. डेस्टिनीज प्लान इज कि आपको खुश करना है. अब आपको आपकी लाइफ में एक अच्छा साइकिल लेकर आना है, ये डेस्टिनी का प्लान है. अब बहुत हो गया ऐसे जो सिचुएशन आपकी है, चाहे वो फाइनेंशियल सिचुएशन है, चाहे आपका जो रहन सहन है, आपके साथ जो रिलेशनशिप है, अब वो बदलते हुए नजर आएंगे. डेस्टिनी का प्लान है कि अब आपकी लाइफ में अच्छा समय लेकर आना है. बच्चा बहुत ही उदास हो गया है, उसको अब खुश करना है. सो ऐसा सिचुएशन है. देन वी हैव द कोर्ट हाउस. इफ यू वर डीलिंग विद सम लीगल इशू, लीगल बैटल, दैट इज अबाउट टू एंड. थैंक गॉड इट इज अबाउट टू एंड, बिकॉज इट इज कंजंक्ट विद गुड पॉजिटिव कार्ड. सो ये जो लीगल इशू है ये आपकी फेवर में एंड हो रहा है. और कोर्ट हाउस ये भी शो करे, लाइक सम ऑफ यू आर लॉयर, सम ऑफ यू आर वर्किंग इन गवर्नमेंट, और आर अबाउट टू गेट गवर्नमेंट जॉब्स, और आर अबाउट टू बी ऑन अ पोजिशन जो बहुत पावरफुल है. आपके हाथ में पावर है टू कंट्रोल अदर पीपल और कंट्रोल द वर्क्स. सो इस तरह का चेंज आ रहा है. सम ऑफ यू आर गोइंग टूवर्ड्स सम कैपिटल सिटी, ऑल राइट. जैसे पंजाब हरियाणा कैपिटल इज चंडीगढ़ और इंडिया की कैपिटल इज दिल्ली. सम ऑफ यू आर मूविंग फ्रॉम योर होमलैंड टू अ कैपिटल सिटी, ऑल राइट, जहाँ पर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा है. उस ऐसी जगह पर आप जा रहे हो, कैपिटल सिटी में आप जा सकते हो. Then we have the Lovers card here. This Lovers card is, of course, it can show that you may meet someone who is, very understanding, who understands you really well, who takes care of you, both of you are emotionally on the same page. But what I am getting the message here is ki in conjunction with the wealthy man, the Lovers here is showing that you love your work.
यू लव योर प्रोफेशन. यू आर नॉट सेइंग कि अरे भाई फिर सुबह हो गई, अब फिर काम पर जाना पड़ेगा. यू आर नॉट सेइंग दिस. द डेस्टिनीज प्लान इज कि जो चीज़ें आपको मुश्किल लगती थी, या तो उनका एंड हो रहा है या वो अब आपके लिए बहुत ईजी हो गई है. मनी अर्न करना आपके लिए ईजी बन चुका है और आपको अच्छा लगता है मनी अर्न करना. इनफैक्ट अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना, ये अब आपको अच्छा लगने लग गया है. क्या होता है, नॉर्मल बात है बड़ी, कई लोग कहते हैं कि जब हमने शुरू में जिम ज्वाइन करा था तो बहुत मुश्किल लगा था, एंड इट हैज़ बिन लाइक 3 months नाउ और 4 months और मे बी 6 months, एंड नाउ वी फील दैट वी लव टू गो टू जिम. शुरू में चीज़ें मुश्किल लगते हैं, बट वेन वी गेट यूज टू इट वी स्टार्ट टू लव इट. सो कुछ वैसी सिचुएशन यहाँ पर हो रही है. ये डेस्टिनी का आपके लिए प्लान है. तो अगर आपको लगता है कि मेरे को किसी चीज़ में बड़ा ही जोर लग रहा है, बहुत ही हार्ड वर्क लग रहा है, डोंट वरी, या तो वो चीज़ एंड हो रही है, ये डेस्टिनी का प्लान है, या फिर उस चीज़ में आपको ईजीनेस फील होने लग जाएगी, ईजी लगने लग जाएगी, एंड यू विल लव दैट वर्क. End of the deck में we have the toil and labor card. Literally it can show that pile number 3 that you can have your Atma Karka Saturn planet holding the highest degree in your chart can be Saturn, or your moon or your sun or your Atma Karaka is placed in the Capricorn or the Aquarius sign, or is conjunct with Saturn, your sun moon rising, your sun moon or Atma Karaka can be conjunct with Saturn, or Saturn is aspecting your sun moon or Atma Karaka. That can happen. But toil और labor ये शो करे या तो आप past life से गुण लेकर आ रहे हो हार्ड वर्क का, या फिर इस लाइफ टाइम में आप सीख रहे हो हार्ड वर्क करना. और टॉयल और लेबर ये शो कर रहा है, डेस्टिनी का ये प्लान है कि डेस्टिनी ने आपको हार्ड वर्किंग बनाकर छोड़ना ही है. So don't run away from hard work, because destiny's plan is to make you a very hardworking soul. Destiny wants you to work for long hours, to work for a long time, and then the destiny's plan is to give you that wealth. एंड ऑफ कोर्स वेल्थ में हेल्थ भी आती है, वेल्थ में मनी भी आता है, वेल्थ में अच्छे रिलेशनशिप्स भी आते हैं, और लिविंग स्टैंडर्ड भी आता है. तो वो ऐसा डेस्टिनी का आपके लिए प्लान है. वी आर गोना पुल सम स्पेसिफिक कार्ड्स फॉर यू. पाइल नंबर 3 अबाउट योर करियर. तो अगर आप जॉब में हो, बिजनेस में हो, एजुकेशन में हो, जिस भी स्टेज ऑफ लाइफ पर आप हो, तो उसके लिए क्या मैसेज है यहाँ पर, डेस्टिनी का क्या प्लान है करियर में. पाइल नंबर 3 के लिए. Okay, we have 2 cards here. We have the Knight of Wands and we have the 5 of Swords. करियर में कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, और ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ आपको ही मिल रही है, किसी और को बिल्कुल भी नहीं मिल रही है. आई डोंट लाइक इट जस्ट कमिंग टू यू. हो सकता है आप ये सोचो कि मेरे से ज़्यादा डिजर्विंग लोग हैं, पर मुझे कैसे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है और किसी को क्यों नहीं मिल रही है. Something is fishy, but you know what, like again this is destiny's plan to give you something wonderful, to give you something really exciting, and you may feel कि शायद मैं डिजर्व नहीं करता हूँ या करती हूँ, बट द थिंग इज द डेस्टिनी इज लाइक नो, यू डिजर्व इट. इवन दो मे बी यू हैव स्टार्टेड दिस जॉब और मे बी यू हैव स्टार्टेड दिस बिजनेस जस्ट नाउ एंड यू फील लाइक कि नई अपॉर्चुनिटी मैं नहीं डिजर्व करता या करती, बट द थिंग इज पास्ट लाइफ में आपने बहुत एफर्ट करा है, आपका जो पूर्व पुण्य है वो बड़ा एक्टिव है इन द फ्यूचर, इन द वेरी नियर फ्यूचर, या अभी से वो एक्टिव हो चुका है. पूर्व पुण्य होता है 5th हाउस. 5th हाउस की जब दशा चलती है तो वी नो कि अगर आप बैड कर्मास भी करो तब भी आपको गुड रिजल्ट आएगा, क्योंकि पूर्व पुण्य की दशा चल रही है, पूर्व पुण्य वाले प्लैनेट की दशा चल रही है. फॉर एग्जाम्पल यू आर अ वर्गो राइजिंग पर्सन, बर्थ चार्ट में वर्गो राइजिंग है, असेंडेंट में वर्गो साइन है, तो 5th हाउस में कैप्रिकॉर्न साइन है. और तो सैटर्न रूल करता है. सैटर्न की लेट्स से दशा चल रही है, अंतरदशा महादशा शुरू होने वाली है, चल रही है, तो अभी चलना शुरू हुई है या फिर अभी चलेगी. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल है. तो आपके लिए जो है हार्डवर्क तो होगा, पर साथ में उस हार्डवर्क का बहुत अच्छा रिजल्ट होगा. एट टाइम्स यू में फील कि शायद मैं डिजर्व नहीं करती, बट यू विल गेट सच अपॉर्चुनिटीज. तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स यही शो करता है देयर आर गोना बी पीपल हु आर गोना बी जेलस ऑफ यू, क्योंकि शायद उन्होंने आपसे ज़्यादा हार्डवर्क एफर्ट अभी करा था. उनको नहीं वैसे जेलस एनवियस होना चाहिए आपसे, क्योंकि उन्होंने कौन सी आपकी पास्ट लाइफ देखी, आपको तो खुद अपनी पास्ट लाइफ याद नहीं है. तो वी शुड अगेन नॉट बी सो जेलस. सो यहाँ पर यही 2 कार्ड्स ये शो कर रहे हैं कि करियर, बिजनेस में अगर आप हो, बिजनेस में बहुत बड़ी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लग रही है,
जॉब में हो तो कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आपके हाथ लग रहा है और उसकी वजह से आपको रिकग्निशन मिल रहा है, उसकी वजह से आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर पा रहे हो, उसकी वजह से आप अच्छे कनेक्शंस क्रिएट कर पा रहे हो. अगर आप एजुकेशन में हो तो ऐसा हो सकता है कि आपने शायद पढ़ाई भी ना करी हो अच्छे से, उसके बावजूद आपके बहुत अच्छे नंबर आ गए, समहाउ आ गए, आपका तुक्का सही लग गया. तो ऐसी सिचुएशंस यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है. ये डेस्टिनी का प्लान है आपके लिए. पाइल नंबर 3 यहाँ पर फाइनेंसेस के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है. पाइल नंबर 3 के फाइनेंसेस, अगर आप खुद अर्न करते हो पाइल नंबर 3 तो ये आपके लिए कार्ड होगा. अगर आप खुद अर्न नहीं करते तो समवन एल्स इन योर फैमिली, उनके लिए ये फाइनेंसेस का कार्ड है. ऑल राइट, we have the star card. The star is such a positive card. Star represents hope. So finances are improving, they are flowing into your life. Like star here shows the flow. So yeah, it is showing कि जो कैश फ्लो है, हम देखो मनी को हम कैश फ्लो कहते हैं, लिक्विड मनी कहते हैं ना. तो मनी it kind of is a thing which we state in liquid form. So yeah, cash flow increase हो रहा है, कैश फ्लो बढ़ रहा है आपके घर पर, आप खुद बहुत अच्छा मनी अर्न कर पा रहे हो. वेल्दी मैन आया तो ऑफ कोर्स यही एक्सपेक्टेड था. वेल्थ जो है वो फ्लो कर रही है एंड यू आर रियली हैप्पी अबाउट इट. बट आई ऑल्सो वांट टू से कि शायद आपके पास इस मनी को इंजॉय करने का समय ना हो, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो अपने करियर में, क्योंकि एंड ऑफ द डेक में हमारे पास यहाँ टॉयल एंड लेबर का कार्ड आया था. तो जो आप मनी अर्न कर रहे हो शायद आप उसको अभी इंजॉय ना कर पाओ, आगे चल के इंजॉय कर पाओ, क्योंकि अभी आप मनी अर्न करने में बहुत बिजी हो. मनी और कैसे ग्रो करो तो उसमें बहुत बिजी हो, शायद आप उस मनी को अभी इंजॉय ना कर पाओ, बट लेटर यू विल बी एबल टू इंजॉय इट. एंड अगेन दैट इज डेस्टिनीज प्लान. तो ये आपके रिलेशनशिप्स के लिए कार्ड निकला है. अगेन 2 कार्ड यहाँ पर निकले हैं relationship. So we have the 8 of swords and we have the emperor. It shows कि कोई performance हो रही है और ये emperor जो है डायरेक्टर है, कट या एक्शन बोल रहे हैं. So I feel that pile number 3 other people, like हमने बात करी है इसके बारे में यहाँ पर भी, करियर वाले में भी, दैट देयर कैन बी पीपल हु आर एनवियस ऑफ यू, हु आर जेलस ऑफ यू बिकॉज यू आर अचीविंग अ लॉट. एंड मे बी योर सिबलिंग्स और मे बी योर कजन्स और मे बी योर रिलेटिव्स, और इवन if you are in a romantic relationship with someone, then that someone is also kind of envious or jealous of you because they feel that you don't deserve it or they deserve it more than you. तो पार्टनरशिप में अगर हो, रिलेशनशिप में अगर हो, मैरिज में अगर हो, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू नीड टू मेक योर पार्टनर अंडरस्टैंड दैट वी आर इन द सेम टीम. अगर आप एक ऑफकोर्स आप फैमिली में हो, आप यू आर नॉट इन अ रिलेशनशिप, यू आर नॉट even married, but you're in a family, so you need to make other people understand that we are a family, we are a unit, we are together, we are not against each other. तो कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड शो करना, कहीं ना कहीं अपने परिवार की, दूसरे की रिस्पेक्ट रिगार्ड करना, दूसरे को ये ना महसूस हो कि आप ईगोइस्टिक हो गए हो या आप अपने आप को कुछ ज़्यादा ही चढ़ा हुआ महसूस कर रहे हो, तो दूसरे को ऐसा लगे कि आप हम्बल ही हो, जो कि आप हो भी. पाइल 3, सो शो दैट हम्बलनेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगेन अदर पीपल कैन बी जेलस. So you need to show your humbleness, you need to show your humility, right? तो ये यहाँ पर information. If you are not in a relationship and you want to get in a relationship, then you meet someone who is already on a very authoritative position, who is who also have fame, who performs their duty really well, who is dutiful, who is really disciplined in their work. तो ऐसे पर्सन से आप मिल सकते हो. They will also have interest towards technology, interest towards acting, singing, music, dance, creativity. ऐसे पर्सन से आप मिल सकते हो. If you are single but you are not ready to mingle, you don't want to be in a relationship, then again वही जो information है, परिवार वाली information, वो यहाँ पर लागू होती है. All right, and yeah,
So this is what we are getting. And about your health के बारे में भी हम एक कार्ड यहाँ पर पुल आउट करेंगे. So yeah, let me pull a card about pile number 3's health. Pile number 3's health. Okay, we have the 7 of Wands here. So 7 of Wands यहाँ health के मामले में ये शो कर रहा है that you may not have, you are not really putting so much attention towards your health. Your attention is on your present, on like what is unfolding in right in front of your eyes. आपका उधर अटेंशन है, आपका कहीं ना कहीं अपनी फिजिकल मेंटल हेल्थ पर अटेंशन नहीं है. एंड समहाउ वो अटेंशन जा भी इसलिए नहीं रहा है क्योंकि फिजिकल मेंटल हेल्थ अच्छी है. तो अटेंशन भी उन जगहों पर जा नहीं रहा, क्योंकि अटेंशन तब जाता है जब कोई तकलीफ हो, तब अटेंशन जाता है. तब हम कहते हैं कि नहीं हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, हमें टाइम पर सो जाना चाहिए, फिर ये चीज़ें नहीं होंगी. समय पे सो जाएंगे तो नेगेटिव ख्याल भी नहीं आएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा नेगेटिव ख्याल ना रात को आते हैं. रात तमो प्रधान है ना, रात को आते हैं. अगर आप समय पर ना सो डिप्रेशन आता है. तभी हमारे पेरेंट्स सही कहते थे शुरू से, हमने उनकी बात नहीं मानी, वो अलग बात है, कि सच में अगर आप समय पर सो जाओ और सुबह जल्दी उठ जाओ तो सच में पॉजिटिव अच्छा महसूस करोगे और डिप्रेशन दूर होगा. ये सच्चाई है, क्योंकि सुबह जो एक एनर्जी वातावरण होता है वो अच्छा होता है रात वाले वातावरण से. सो अगेन विद द 7 of Wands इट शोज कि आपका अटेंशन नहीं जा रहा है अपनी फिजिकल मेंटल हेल्थ पर. चीज़ें अच्छी है, इस वजह से अटेंशन नहीं जा रहा है. फिजिकल मेंटल हेल्थ अच्छी है तब भी अटेंशन नहीं जा रहा है. अबाउट योर लाइक वी आर गोना पुल कपल ऑफ मोर कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 3. व्हाट इज द डेस्टिनीज प्लान फॉर पाइल नंबर 3? ओके, वी हैव सोलर काम, इट सेज क्लैरिफाई. लाइफ में जो है डेस्टिनी ये शो करिए कि डेस्टिनी आपके लिए क्लैरिटी लेकर आ रही है. इनफैक्ट हर चीज़ आपको लगेगा बड़ा सिंक्रोनाइज्ड मैनर में, स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ रहे हो. दैट यू आर गोना फील दिस इज द डेस्टिनीज प्लान फॉर यू. एंड यू आर मूविंग टूवर्ड्स द हायर स्टेट ओनली, यानी डिमोशन नहीं हो रहा, लाइफ में प्रमोशन ही होता जा रहा है, करियर में आगे ही बढ़ते जा रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हो. देन वी हैव असेंडेंट, इट सेज एंट्रेंस. सो विद द असेंडेंट कार्ड इट शोज आपका फेम बढ़ रहा है. असेंडेंट भी जो है फेम को रिप्रेजेंट करता है, तो आपका फेम रेप्यूटेशन जो है सोसाइटी में वो इंक्रीज हो रहा है. एंट्रेंस कार्ड ये शो कर रहा है दैट सम पीपल आर एंटरिंग योर लाइफ हु आर गोना बी गुड फॉर योर करियर, गुड फॉर योर रेप्यूटेशन. दे आर गोना बिकम वेरी गुड, लाइक द पीपल हु आर कमिंग इन योर लाइफ दे आर गुड पीपल, दे आर नाइस पीपल जो आपकी लाइफ में स्टे करेंगे, दे विल स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो ये यहाँ पर आपके लिए इंफॉर्मेशन है. एंड आई ऑल्सो फील विद द असेंडेंट कार्ड, असेंडेंट हमारी फिजिकल बॉडी को शो करता है, हमारे सोच विचार को भी शो करता है. तो आपका सोच विचार बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, थॉट्स बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, और आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी नज़र आ रही है. फिजिकल हेल्थ, फिजिकल बॉडी हेल्दी नज़र आ रही है. ऑल राइट. So, and even with the ascendant, it represents our face. So, if you were dealing with some face issue, skin issue, कोई भी skin issue, so that skin issue is ending. If you were dealing with hair loss or hair problems, that situation is also ending. क्योंकि ascendant सिर वाला area है. So, that's why. All right. So, yeah, that was it. This was the reading for you, pile 3. Astrologically अगर हम देखें तो ऑफकोर्स फर्स्ट हाउस में जो है प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होंगे, या एरी साइन में आपके प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होंगे. सो एरी साइन, लीब्रा साइन, लीब्रा जो है प्रमोशंस को शो करता है या बिजनेस को भी शो करता है. सो एरीज, लीब्रा, ऑफकोर्स कैप्रिकॉर्न एंड सेजिटेरियस और कैंसर भी. ऑल राइट. सो एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका. कैंसर में वी हैव द नक्षत्र ऑफ पुनर्वासु, पुष्या, अश्लेषा. लीब्रा में चित्रा, स्वाति, विशाखा. आई विल ऑल्सो से स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो में विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा. कैप्रिकॉर्न में
We have the nakshatra of Uttara Ashada, Sravan, Dhanishta. तो ये साइंस, ये नक्षत्र prominent है. Sun, Moon, Rising, Atmakar, Ascendant, Ascendant Lord or other planets will be placed in these sign in these nakshatra in the main birth horoscope या फिर in the D12 chart या फिर in the D9 Navamsha chart. So do let me know, pile number 3, how this reading resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. And also write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets over the website itself. Right now I'm wearing the C set and I'm wearing the citrine and the amethyst bracelet. You can check these bracelet sets out on the website. Again, the link to my website is in the description box below. And I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye, be positive, stay happy.